एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। program, zero surveillance, zero monitoring, we could achieve the almost zero status of this FMD from this island. And I'm very happy to share the information that during the last maybe 13 years or 14 years, our zero reactivity, that means the presence of FMD virus in the animal is almost less than the 5%. As per the OIE guideline, if the zero reactivity or the DIVA positivity is less than 5%, then we can go for declaring the zone as a FMD free zone. And after 2 years, with vaccination and without vaccination, we can go for free FMD area. So our government of India, they have already selected 3 states. In that state, Andhra Pradesh, Haryana and Andaman is also included, wherein actually the zero positivity of FMD is less than 5%. And we are doing continuous zero monitoring as well as the zero surveillance, both for the pre-vaccination and the post-vaccination, as well as for the zero surveillance. And last year, although it was late, but the zero positivity post-titer is quite okay. It was more than 80%. And to have the herd immunity, or we can say that the protective immunity titer, we should maintain the herd immunity status of more than 80% always. So for that, vaccination is the only solution. For that, animal husbandry has been doing a very sincere effort in this regard. Sir, the FMD was reported only in the South Andaman Island. So as per the direction and discussing with the Government of India and FMD expert, we are doing vaccination only in the South Andaman district, and Nicobar and North Andaman and Middle Andaman district animal, they are free from FMD. We are continuously monitoring and doing the zero surveillance study also. And I hope that the continuous effort of Animal Husbandry Department and our support of our institute, we can achieve zero status of FMD in this island, and we can be the first state in India to be declared as FMD free zone. I wish a very good success FMD vaccination program. And as I said last meeting with Animal Husbandry Department, we should celebrate this vaccination program like other Government of India vaccination program. So many vaccination programs going on, not only in the animal, in the human also. We should celebrate it as a like a festival. And sincerity is very important, dedication is very important. I hope that all the paravet staff are well trained. In case any doubt is there regarding vaccination, collection of the serum sample, how to collect, how to dispatch it, and other details, you can ask me or you can discuss with the senior veterinary officer. आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप वैक्सीनेशन देते हैं उसमें हर एक एनिमल को इंडिविजुअल वैक्सीनेशन देना है। सीरिंज को भी आप डिस्कार्ड ऐसे नहीं कर देना, सिंपली यू कैन नॉट थ्रो इट सिंपली एज सच, यू हैव टू कलेक्ट इट, लेके आना है, उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है, क्योंकि जो वैक्सीन होता है उसमें लाइव वायरस होता है, उसको एटीन्यूटेड ये करके रखते हैं। तो अगर आप ठीक से डिस्पोजल नहीं करेंगे तो इसीलिए बायो सिक्योरिटी जो मेजर्स हम बोलते हैं उसको बहुत ही अच्छे से करना है। और इतना कोशिश करिए कि जो एनिमल को आप वैक्सीनेशन देते हैं, प्री वैक्सीनेशन सैंपल उसी एनिमल से लीजिए एंड पोस्ट वैक्सीनेशन सैंपल ऑल्सो उसी एनिमल से लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो प्री वैक्सीनेशन एनिमल में आप वैक्सीन दिए हैं, पोस्ट में देंगे तो जो टाइटर है, इम्यूनिटी का जो टाइटर है वो मेंटेन रहे।
और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम एवरी 6 मंथ दिया जाता है। हालांकि कुछ स्टेट में 3 राउंड ऑफ वैक्सीनेशन भी देते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे जो स्टेट हैं वहाँ पे 2 वैक्सीनेशन इज इनफ, बिकॉज इसका क्या होता है, जो इम्यूनिटी है ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ वो मेंटेन होता है। आफ्टर दैट वी हैव टू गिव ए बूस्टर इम्यूनिटी। अभी क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है 5-4-1 भी कर सकते हैं, 4-3-2-1 भी कर सकते हैं, यानी कि 6 मंथ से जो एज कम वाला जो जानवर है उसमें आपको कलेक्ट करना है। दैन उसके बाद में आपको 1 ईयर, आपको 2 ईयर, 6 to 12 मंथ, इस तरह का गाइडलाइन दे के रखा है। वो आपको जितने भी टीम लीडर्स है, वेटनरी ऑफिसर्स, वो आपको बता देंगे। और सभी एनिमल्स को टैगिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टैगिंग इज़ नॉट फॉर दिस वैक्सीनेशन, इट इज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन। इट इज़ लाइक ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड और द नंबर फॉर इंडिविजुअल एनिमल। वो आपको बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, इसलिए टैगिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड थोड़ा सा अवेयरनेस करना चाहिए फार्मर्स को। बहुत सारे फार्मर्स क्या होते हैं, यहाँ पे अंडमान में उतना ज़्यादा डिजीज़ होता नहीं है, तो वो बोलते हैं कि क्यों हम वैक्सीनेशन दें, इसका क्या फ़ायदा हो। उनको आप थोड़ा सा अवेयरनेस करें कि नहीं होने से क्या नुकसान हो सकता है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि जो सर एज़ पर द ये स्टेटस FMD इज़ द टॉप मोस्ट डिजीज़, उसमें हम लोगों को एवरी ईयर हम लोग करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपीस हमको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस होता है। तो ह्यूज इकोनॉमिक लॉस होता है, ह्यूज बर्डन ऑन पार्ट ऑफ द ये फार्मर। इसमें मेनली क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन लॉस हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यू परमानेंट जो है ना वो बांझ होता है, इनफर्टाइल हो जाता है, फिर से कभी वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो फार्मर को बताना चाहिए। उनको बताइए कि ऐसे होने से मिल्क प्रोडक्शन डाउन नहीं होगा, फीवर नहीं आएगा, वैक्सीनेशन इज सेफ फॉर प्रेग्नेंट ऑल्सो वी कैन गिव। तो इस तरह का जो लैक ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है फार्मर के बीच में, ये सब थोड़ा सा अवेयरनेस ये क्रिएट करिए, ताकि जो वैक्सीन का जो प्रोग्राम है जैसे दूसरे वैक्सीनेशन में होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसा चीज़ है, जब तक हम 100% वैक्सीनेशन हर्ड में नहीं करेंगे तब तक हम प्रोटेक्शन 100% नहीं होगा। इसलिए उनको आप अवेयर करिए। अगर एक भी एनिमल छूट जाएगा तो फिर वो उससे दूसरा एनिमल में ट्रांसमिट हो सकता है। सो विद दिस आई थैंक एनिमल हस्बेंड्री सेक्रेटरी साहब ऑल्सो। सेक्रेटरी साहब के साथ बहुत बार 2-3 मीटिंग में किया है। इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हेल्पफुल। तो मैं विश करता हूँ कि अंडर द गाइडेंस ऑफ सेक्रेटरी साहब दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम विल बी ए वेरी फ्रूटफुल एंड सक्सेसफुल वन। एंड आपका कॉपरेशन एंड जो सपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो 1 मंथ का जो टारगेट है इसको बहुत ही अच्छे से करिए। कुछ भी डाउट होगा तो आपके जो टीम लीडर्स हैं उनसे पूछिए, डॉक्टर साहब से पूछिए, मुझसे पूछिए। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। को कवर कर रहे हैं बिकॉज यहाँ कुछ एनिमल्स में ये ट्रेसेस है। होपफुली इस कैंपेन के बाद
अंडमान, पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फर्स्ट टाइम इन इंडिया फुट एंड माउथ डिसीज़ फ्री स्टेटस का होने के चांसेस ब्राइट है। एंड आई विश द डिपार्टमेंट सक्सेस एंड सभी फार्मर्स को यही कहता हूँ, इस वैक्सीनेशन को अपना कैटल को जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर करा दीजिए, बिकॉज इसकी वजह से मिल्क का यील्ड भी कम होता है और इनफर्टिलिटी भी होता है। ठीक, ये फुट एंड माउथ का वैक्सीन फ्री हो जाए तो आपका दोनों बढ़ेगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अभी जैसे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट फुट एंड माउथ डिजीज़, जैसे हम खुरपका मुंहपका बीमारी जो जानवरों में होता है उसके बारे में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम करने जा रही है। ये तीसरा राउंड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है। भारत सरकार के सौजन्य से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत पहले शुरू हो गया था 2003 में। उसके बाद में पहले फुट एंड माउथ डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुए थे। उसके बाद अभी पिछले 3 वर्षों से NADCP यानी कि नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसकी शुरुआत हुई है। इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू में गाय में, भैंस में, सूअर में और बकरियों में दिया जाता था, लेकिन अभी ये डिसीज़न लिया गया है कि फ़िलहाल क्योंकि इसका जो प्रकोप है गाय में और भैंस में ज़्यादा होता है, इसलिए गाय और भैंसों में दिया जाएगा। इसका जो है साउथ अंडमान में करीब 8,400 के करीब संख्या है गाय की, उसका जो टारगेट लिया गया है। और इसका जो प्रोग्राम है हर 6 महीने में दिया जाना चाहिए, मतलब साल में 2 बार वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद में इसके खून के नमूने को हम कलेक्ट करते हैं वैक्सीनेशन के पहले और वैक्सीनेशन के 1 महीने के बाद। खून के नमूने को हम कलेक्ट करके ये पता लगाते हैं कि वैक्सीन देने के बाद में उसमें इम्यूनिटी यानी कि उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कितना विकास हुआ है। और पिछले कुछ राउंड के वैक्सीनेशन के खून के नमूने के हमने जो जांच किया है उसके आधार पर हमने देखा है कि अंडमान में जो ये FMD की जो समस्या है इसमें काफ़ी गिरावट आई है। तो ये भी चल रहा है कि हम अगर इसको मेंटेन कर पाएँ, अगर 5% से कम अगर हम मेंटेन कर पाएँ तो ये भी हम कर सकते हैं कि अंडमान को हम एक FMD मुक्त एक जोन या तो एक राज्य या तो एक डिस्ट्रिक्ट हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे बहुत ही लाभ पहुंचेगा, किसानों को फ़ायदा होगा। क्योंकि क्या होता है कि FMD जब आता है तो इसका पहले 2005 में आया था, उसके बाद 2018 में आया था। इसमें बहुत जानवरों में ये नुकसान हुआ था, कुछ जानवर मरे भी थे और इसमें दुग्ध उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई थी। कभी कभी ये देखा गया है कि ये परमानेंटली इनफर्टाइल यानी कि बांझपन की भी समस्या इसमें आई थी। तो इन सब को देखते हुए ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी 2019 में। करीब 12,500 करोड़ रुपए के जो लागत है इसके किया था। और इसमें ये टारगेट है कि 2030 तक हम पूरे भारतवर्ष को FMD मुक्त करें और FMD मुक्त हम अंडमान को कर सकते हैं। इसमें फार्मर की जो भागीदारी है, एनिमल हस्बेंड्री का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, दोनों अगर एक साथ मिलजुल कर अगर करें तो ये बहुत ही हम जल्द से जल्द अंडमान को हम FMD मुक्त हम ये कर सकते हैं। बस इसमें मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये किसानों को इस बीमारी के प्रति जो भी इसमें आप देखते हैं, जो भी लक्षण ये देखते हैं, ऐसा आप निकटतम जो भी पशु चिकित्सक केंद्र हैं उसमें जाकर इसकी सूचना दें और बढ़ चढ़कर ये जो टीकाकरण जो अभियान है इसमें हिस्सा लें। क्योंकि अगर एक भी जानवर अगर छूट गया तो क्या होगा कि उससे दूसरे जानवरों में ये इसकी बीमारी आने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ये 100% यानी कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सभी जानवरों में देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये विश करता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है अच्छे से चले। 1 महीने का ये जो प्रोग्राम है, इसके बाद फिर से 6 महीने का ये फिर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। एक बहुत ही अच्छा अभियान शुरू किया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। मैं उनको विश करता हूँ कि ये अच्छे से अच्छे ये पूरा करके कवर करें। धन्यवाद। ये मोबाइल वैक्सीनेशन है और ये हर इसके लिए पूरी एक टीम की गठन किया गया है। इसमें पूरे 8 या 10 टीम है। हर वेटनरी हॉस्पिटल एक जोन एक बनाया है और जितने भी साउथ अंडमान में जितने भी गाय हैं करीब 8,400, हमारा टारगेट है कि एक भी गाय उसमें छूटना नहीं चाहिए। हर घर में जाकर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा।
सर सारा एनिमल या डॉग्स को भी? नहीं नहीं, ये डॉग में नहीं होता, ये मवेशियों में होता है। जैसे ये जो फटे खुर वाले जो जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, सुअर हो गया, भेड़ हो गया। भेड़ तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गाय, भैंस, बकरी, सुअर में ये प्रकोप होता है। लेकिन अभी का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, फिलहाल सिर्फ गाय और भैंस में ये दिया जा रहा है। तो मतलब जानवरों के अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे? नहीं, कहीं अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है। ये घर घर में जाकर वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण अभियान है, हर घर में जाकर ये वहाँ पे जितने भी जानवर हैं सबको वैक्सीनेशन प्रोग्राम वहाँ पे दिया जाएगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।